कैमरा ऑन भी मत करना। So shall I start? Sir? Sir नहीं है? Okay, we will start now. Huh? So कल का questions याद है? Yes, ma'am. Yes, Shall I ma'am. start asking questions then? Yes. Ready, no? Yes, ma'am. Okay, why others are not putting on their videos? Only few have kept their videos on. Please put on the videos. Okay. So the first question was,
Carbylamine reaction, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ruchika? Come on, Ruchika, say what is carbylamine reaction? Ma'am, I was not there in the lecture yesterday. Only yesterday, no? Before that? I was there. But you should ask what was done in the class, right? Yes. That should not be the excuses. You should be aware what was done in the class, what will be asked today. सब मालूम होना चाहिए. Ma'am. Yes, ma'am. Sorry. Kids now. Okay. Disha, Yes, ma'am. what is carbylamine reaction? Ma'am, the aliphatic and the aromatic primary amines on hitting with the with chloroform gives the Chloroform and what? chloroform and chloroform and chloroform and alkyl chloroform and KOH. Chloroform and KOH gives the false smelling aryl halide, aryl or alkyl or aryl isocyanide or carbylamine. This is the carbylamine reaction. The primary amines gives this test. Secondary and tertiary amine do not give this test. Okay. Anyone else? Yes, Preeti, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Bolo, what is carbylamine reaction? Aliphatic and aromatic reaction. Aliphatic and aromatic primary amines. The reaction in which they are heated with a chloroform and KOH, it gives out false odor, and it is known as carbylamine reaction. What is the name of the product? KOH and chloroform. Product क्या बनता है? HCl. No, false smelling product called what? जो प्रोडक्ट बनता है ना उसका नाम क्या है? Isocyanide. हाँ, अल्काइल Isocyanide. आइसोसाइनाइड. ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है बोलो? जनरल फॉर्मूला क्या है? RNH2 plus अल्काइल आइसोसाइनाइड. alkyl isocyanide. फॉर्मूला क्या है? R single bond NH2 plus KOH reacts with मैं सिर्फ अल्काइल साइनाइड का जनरल फॉर्मूला पूछ रही हूँ, अल्काइल आइसोसाइनाइड का. R single bond NC. हाँ, इतना ही पूछा मैंने. RNC. ठीक है. And which compounds do not give this test? Secondary and tertiary. Secondary and tertiary amines do Tertiary. not give this test. ठीक है. Now the next person. Saurabh is there? Yes, ma'am. हाँ Saurabh. What is acetyl reaction? Ma'am, I was not there for 2 lectures. Yesterday I was there. Before that 2 lecture I was not there. So I don't get Presentation क्या बताएगा? मैम मैं आपके लेक्चर में नहीं था. एक भी बार अटेंड नहीं किया? और उसके पहले 2 लेक्चर नहीं था. तुम्हारा वीडियो ऑफ क्यों है सौरभ? सर ने सबको ऑन करने के लिए बोला है. सौरभ, नेक्स्ट टाइम आई विल बी आस्किंग यू द क्वेश्चन. हाँ, सो Yes, ma'am. अभी लेक्चर हुए हैं अमाइंस का, प्लीज गो थ्रू दैट वीडियोस एंड कम फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, अमाइंस बहुत इजी चैप्टर है, इट इज वेरी स्कोरिंग आल्सो. हाँ, यू ऑल हैव द रिकॉर्डिंग, यू ऑल नो, यू ऑल कैन गो थ्रू इट. ठीक है. नाउ
Rajlakshmi, you say? What is acetylation? Replace of H amine by acyl. Replace of H amine by acyl. R single bond, C double bond, O group. Acetylation, CH3 single bond, CH3 single bond, C double bond, O. Okay. What is the base used here? Which base is used here? Pyridine. Pyridine. Okay. Prachi, Yes, ma'am. you tell me what is Hoffman's degradation reaction? Ma'am, aliphatic and aromatic primary amines on reaction with Br2 and aqueous concentrated KOH gives first degree primary amine with one less carbon atom. This is Can also you called repeat the as, statement again? yes, ma'am. Ma'am, just 1 minute. Relax. Reaction of aliphatic and aromatic primary amide with Br2 and aqueous KOH gives 1 degree primary amine which contains one carbon atom less. This is also called as step down reaction. And yes. किसी का सेटिंग किया है क्या? खुद बता रहे क्या कि मैम? कोई बता रहा है? क्या मैम? You are saying it or someone is helping you out? No ma'am, I am saying it. Okay. ठीक है, मैं तुमको ना दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ. ये बताना, how will you prepare methylamine? How will you prepare methylamine from amide? ठीक है? You have Ma'am, some may I amide. write a reaction? You write it down. How will you prepare methylamine from amide? अभी ये amide कौन सा होगा वो तुमको select करना पड़ेगा. ठीक है? You will have to think and read. I'll come back to you again. Next, Poonam. Yes, ma'am. You say what is Hoffman's degradation? The conversion of amides with bromine and concentrated aqueous KOH produces primary amine, one less carbon. It's called Hoffman degradation. It is also known as step down reaction. Okay. Very good. Next person, Ankita. Ankita, bolo, what is Gabriel thalamide synthesis? Ankita? Yes, ma'am. Where are you? Yes, ma'am. You, I cannot see you. Bolo. Bolo. Ma'am, I'm audible? Yes, say. Okay. Ma'am, in this process, the aliphatic primary amines, it is carried out in 3 steps. The first one is Put on your video, no? Ma'am, my video is on only. नहीं, दिख नहीं रहा है. मैम मैं तो चालू किया है. हाँ, बोलो. Okay, in this process, the formation of potassium salt of thylamide form reaction with thylamide on reaction with alcoholic potassium hydroxide. Second one, the formation of an alkyl. What is the first step you said? Ma'am, am I audible? You are audible, but I cannot see your video. एक डॉल ही दिख रहा है. I cannot see your video. Ma'am, now? हाँ, बोलो. What is the first step, say? Ma'am, the formation of potassium salt of thylamide
form reaction with the ethylamide on reaction with alcoholic potassium hydroxide. Okay. Hasti, you say the second step. Put on your video. Ankita, when you say the answer, your video goes off. Huh? Otherwise, it comes. Hasti? Hasti, are you there? Hasti? नहीं है तो मैं निकालती हूँ अभी. I'll throw you out now then. Tanvi? Yes, ma'am. बोलो. Second step बोलो. Ma'am, formation of an alkyl thalamide from thalamide. Formation From of an potassium salt. from potassium salt by reaction with alkyl halide. Okay. आशीष Yes, miss. तुम्हारा पढ़ाई नहीं हुआ? Miss Gabriel नहीं हुआ. ठीक है, मैं दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ तुमसे. साक्षी, you say third one. Okay, ma'am. Alkaline hydrolysis of an alkyl acetamide to form corresponding primary amine. Okay, very good. So you all have practiced the reactions. Reaction practice किया? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. See, this is very important reaction ना, एग्जाम में पूछेंगे. So I want everyone to learn it. ठीक है, पक्का एक क्वेश्चन आएगा टेस्ट पे वगैरह सब. ठीक है. Okay, now the next question is Shravani Jadhav. Yes, ma'am. You say why aliphatic amine is more basic than aromatic amine? Aromatic amines have strong intermolecular force. हाँ, ये क्या है? And Intermolecular force. Why aliphatic amines are more basic than aromatic amine? Whatever I am saying, is it correct or no? Aliphatic amine ज़्यादा basic है कि नहीं? yes, ma'am. तो क्यों ऐसा है वो बताओ. Intermolecular force जैसे मैंने बताया नहीं इसमें. Miss, they have they donate they have more capacity of donating the electrons. Miss, am I audible? Yeah, say. Who has more electron donating capacity? Aliphatic amines. Aliphatic amines. What about aromatic amines then? They have less capacity of donating Why the less? electrons. उनके पास भी एक ही lone pair of electrons है ना? But why you are saying like that? Where that electron goes then? Resonance of benzene ring. Oh, you should say that statement properly. In aromatic amines, the lone pair present on the nitrogen atom enters into the resonance. Okay. So because of which it is not available for donation. ठीक है, डोनेट करने के लिए वो अवेलेबल नहीं है. एज अ रिजल्ट इट इज लेस बेसिक कंपेयर टू व्हाट एलिफैटिक अमाइंस. इज इट क्लियर? इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स नो, अपने ओन वर्ड्स में भी तुम लोग लिख पाएंगे. अभी तुम लोग ऐसा मत सोचना कि 10th में जैसा रट्टा मार के सब लिखते थे ना वैसे लिखेंगे करके. यू शुड नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड यू शुड ट्राई टू मेक योर ओन सेंटेंसेस. और वो सेंटेंस बनाते वक्त जो टेक्निकल टर्म्स है वो यूज करके बनाने का. जैसे कि यहाँ पर रेजोनेंस वर्ड है, ठीक है, तो वो सब वर्ड्स उसमें इनकॉर्पोरेट करने का. एंड दिस इज हाउ यू शुड लर्न ऑल्सो. अभी ऐसा मत सोचना कि मैं एक एक लाइन करके बाय हार्ट करेगा तो ही मुझे अच्छा लगेगा, ऐसा सब नहीं है. 10th इज डिफरेंट, 12th इज डिफरेंट. यू पीपल आर स्टडिंग साइंस.
इसमें कॉन्सेप्ट समझ के तुम लोगों को पढ़ना चाहिए. ट्राई टू अंडरस्टैंड. टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं ना, थोड़ा समझने का कोशिश करो, अपने आप तुम लोगों को लिखने के लिए आएगा. ठीक है? Okay, now we will begin. Anyways, good. Most of you all have given the answers. Okay, so ऐसे पढ़ाई कंटिन्यू करो, डोंट ब्रेक अप इन बिटवीन. ठीक है? अमाइंस का टेस्ट अभी होगा, मैं सर को बोलेगी सर अमाइंस हो गया है, टेस्ट ले लीजिए करके. ठीक है? सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट. सी यू ऑल हैव टू डू व्हाट. पहले प्रिपरेशन मेथड सब देखो, कितने प्रिपरेशन मेथड्स है वो सब पढ़ो. प्रिपरेशन में पढ़ने का क्या है, पूरा टेक्स्ट बुक थोड़ी ना तुमको रट्टा मारने का है. while when you are studying the preparation, no, reactant क्या है, प्रोडक्ट क्या है और कौन सा रिएजेंट लगता है, ये तुमको मालूम होना चाहिए. ठीक है? रिएक्टेंट के साथ ये रिएजेंट डालने पर ये प्रोडक्ट बनेगा. दैट्स इट, एंड दैट यू शुड राइट इट इन द स्टेटमेंट फॉर्म. रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तुम लोग भर भर के कहानी लिखेंगे और रिएक्शन एक भी नहीं लिखा तो मार्क्स कोई देने वाला नहीं है. केमिस्ट्री में रिएक्शन स्पीक्स अ लॉट. इट हैज गॉट मोर वेटेजेस. ठीक है? तो जितना होता है रिएक्शंस प्रैक्टिस करो, फिर एक या दो लाइन पे उसको एक्सप्लेनेशंस करने का. समझा गया? सो दिस इज हाउ यू शुड प्रैक्टिस इट. एंड विदाउट राइटिंग एंड प्रैक्टिस, नो, 100% I can guarantee you that you cannot write it in the paper. ठीक है? लिख के प्रैक्टिस किया करो. दिस इज ऑल्सो लाइक अ मैथ्स ओनली. ऐसे देखने में सब इजी लगेगा, बट व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग, नो, कुछ याद नहीं आएगा. सीवी पीपल आर हैविंग टफ टाइम. अभी ये ऑनलाइन में क्या है, प्रैक्टिस करने के लिए कुछ हो नहीं रहा है. अभी मुझे मालूम भी नहीं है कि तुम लोग कितने अच्छे से लिखते हो केमिस्ट्री करके. ठीक है? सो यू हैव टू राइट इट फ्रॉम योर साइड. यू शुड टेक एन एफर्ट to clear all your doubts. ठीक है? Okay, anyways we will continue. अभी एक छोटा सा टॉपिक बाकी है, वो होने के बाद तुम्हारा किसी का कुछ डाउट होगा ना, तो I'll be solving that and that will end up with our amines का chapter. Then we will begin with the new chapter. क्या हो गया यश? तो कल हमने क्या किया था? What was our topic yesterday? कल का टॉपिक कौन सा था? रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड. रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड. नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला? HNO2. HNO2. Is it a stable or unstable compound? Unstable. It is a unstable compound. So it is prepared in what? situ. It is prepared in situ. What? In situ means what? Prepare and use, right? Yes. How? तुम्हारा क्या हो गया? रिएक्शन लिखा गया? बताओ मुझे स्क्रीन पे. No, ma'am. नहीं हुआ? प्राची को बोला था ना? मैम कौन सा? एक रिएक्शन मैंने अभी लिखने बोला था. यस मैम. मैम इथाइल अमाइड यूज करते हैं. हाँ, कौन सा अमाइड? इथाइल. मीथाइल अमाइड. इथाइल मैम. इथाइल अमाइड. फॉर्मूला बोलो. CH3 C double bond O, C double bond O Cl. CH3 NH2, sorry. And CH3 C double bond O NH2. Okay. Now, so in the last reaction, that was also called as what? Diazotization reaction, right? ठीक है? तो अभी है ना, उसके बाद हमने क्या देखा था? When an amine is treated with this NaNO2 and HCl, then what happens? Nitrous acid is एक मिनट. See, when how HNO2 is prepared? Nitrous acid. It is prepared by treating what? NaNO2 with NaNO2 plus HCl. HCl together. And is the temperature maintained?
Do we have to make 0.5 D? Yes. Yes. Okay. So temperature, what it should be? 0 to 5 degree. 0 to 5 degree. 5 degree centigrade. Okay, temperature is a must. So what happens when you treat a amine with this NaNO2 and HCl? What is the product obtained? Alkyl diazonium chloride. Alkyl diazonium chloride is obtained. ठीक है, तो अभी ये जो अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड है, इसको हम क्या कर सकते हैं? बाय ट्रीटिंग इट विद डिफरेंट रिएजेंट्स लाइक वाटर या अल्कोहल या कोई और कंपाउंड के साथ ट्रीट करके हम अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बना सकते हैं. ठीक है, सो दोज वर द रिएक्शंस वी हैव सीन, लाइक सैंडमेयर्स रिएक्शंस देखा, गैटरमैन्स रिएक्शंस देखा. ठीक है, फिनॉल फॉर्मेशन देखा. श्रावणी, नरसाले, प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर. क्या मस्ती चल रहा है वहां पर? ठीक है. नाउ फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ फ्लोरोबेंजीन द मेथड इज डिफरेंट, राइट? वहां पर हमने एक डिफरेंट मेथड देखा था, एक नाम दिया था ना मैंने, बाल्स-शीमेंस रिएक्शंस करके. सो अदर हैलोबेंजीन्स यू ऑल कैन प्रिपेयर, लाइक क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, वो सब तुम लोग नॉर्मल रिएक्शन से बना सकते हैं. लेकिन फ्लोरोबेंजीन बनाने का है तो तुमको कुछ अलग मेथड फॉलो करना पड़ेगा. वहां पर क्या यूज करना पड़ता है? फ्लोरोबोरिक एसिड यूज करना पड़ता है. ठीक है, सो यू विल हैव टू कॉन्सेंट्रेट इन दैट पार्ट. उसके बाद हमने क्या देखा? कपलिंग रिएक्शंस क्या है देखा, राइट? वी हैव सीन द कपलिंग रिएक्शंस. नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन, दैट इज रिएक्शन विद arene sulfonyl chloride. Please pay attention here, all of you. I'll share the screen now. I'll be asking questions, so please pay attention. So the next reaction is Hinsberg's test. ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, एक डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है. ये टेस्ट से भी ना हमको ये समझ में आता है कि what type of an amine is given to us, whether it is primary, secondary या tertiary, कौन सा amine दिया है वो समझ में आएगा. ठीक है, इसके पहले भी हमने एक डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट किया था, वो कौन सा है बोलो? कार्बिल अमाइन टेस्ट. ठीक है, वहां पर भी डिस्टिंग्विश होता है ना. अभी ये भी एक वैसे ही टेस्ट है जिसके वजह से हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाएंगे. ठीक है, नाउ व्हाट इज दैट टेस्ट? सी, इसका थोड़ा फॉर्मूला बड़ा रहेगा बट द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल. Okay, pay attention here now. See, the next reaction is Hinsberg's test. ठीक है, अभी ये टेस्ट में क्या करते हैं? What we do is, here we take one reagent and the name of this reagent is benzene sulfonyl chloride. ठीक है, this is the main reagent over here, benzene sulfonyl chloride. अभी इसका फॉर्मूला क्या है? It is C6H5SO2Cl. ठीक है, this is the structure of it. Benzene ring, S है, डबल बॉन्ड O है और एक Cl है. सेम है, इसी को मैंने ऐसे लिखा है. This is the structure of benzene sulfonyl chloride. ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं? प्राइमरी अमाइंस के साथ ये क्या रिजल्ट देता है वो देखेंगे. ठीक है, so if I treat benzene sulfonyl chloride, S double bond O Cl with any primary amine. ठीक है, suppose ethyl amine I am taking it. ठीक है, ये primary amine है. When I react these two together, no, what will happen is there will be an elimination of HCl molecule. अभी HCl कहाँ से जाएगा बोलो? यहाँ से एक H जाएगा और यहाँ से एक Cl जाएगा. ठीक है, ये दोनों निकलने के बाद बचा हुआ जो ग्रुप है, they will combine together. So what I'll get here? Benzene ring, S double bond O. ठीक है, now this S will get attached to this nitrogen atom. So what I'll get here? NHC2H5. Have you understood this step?
Yes. Yes, ma'am. अभी इसका नाम क्या है? इट इज N-ethyl benzene sulfonamide. This is known as N-ethyl benzene sulfonamide. ठीक है, अभी यहाँ पर है ना, this hydrogen is very very important. Why it is very important? Because this hydrogen is highly acidic in nature. ये हाइड्रोजन कैसा होता है? एसिडिक होता है. अभी ये एसिडिक का मतलब क्या है? सी, जो अपना प्रोटॉन्स को डोनेट करता है ना, उसको हम एसिडिक बोलते हैं. ठीक है, द वन विच डोनेट्स द प्रोटॉन. ठीक है, जो प्रोटॉन्स को जल्दी से डोनेट करता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? एसिडिक प्रोटॉन्स करके बोलते हैं. तो यहाँ पर ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये एसिडिक होता है. नाउ व्हाई इट इज एसिडिक दिस हाइड्रोजन? बिकॉज इट इज अटैच टू दिस ग्रुप. देखो ये N के साथ है और N के बाजू में ऐसा कुछ ग्रुप है, और ये ग्रुप क्या होता है? इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. ठीक है, तो कोई भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के बाजू में रहेगा ना, तो वो एसिडिक हो जाता है. सी फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं CH3 लिख रही हूँ. इसमें से कैन आई रिमूव वन हाइड्रोजन एटम? इसमें से मैं एक हाइड्रोजन निकाल सकेगी क्या? इज इट पॉसिबल टू रिमूव एनी वन हाइड्रोजन एटम? इट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? क्योंकि इनमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है ना. यस और नो? यहाँ पर कोई पोलैरिटी है क्या? चार्जेस है क्या यहाँ पर? नो मैम. नहीं है ना. तो यहाँ पर से ना मैं हाइड्रोजन को निकाल नहीं सकेगी. लेकिन इफ दिस इज अटैच्ड टू एनी हैलोजन एटम्स, या मतलब कोई सपोज देखो HCl ले लो. ठीक है, अभी देखो ये H क्लोरीन के साथ अटैच्ड है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो वो ये वाला H को हम लोग बाहर निकाल सकेंगे. समझा गया? इतना सब तुम लोगों को कॉन्सेप्ट याद रखने की जरूरत नहीं है. तुम लोग बस इतना याद रख लेना कि ये वाला H जो है वो हाईली एसिडिक है. कोई किसी ने पूछा ये एसिडिक क्यों है, ये जल्दी से निकलता क्यों है, तो ऐसा कोई पूछेगा ना, तो बोलने का कि ये वाला जो ग्रुप है ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के वजह से ये वाला H एसिडिक बन गया है. बस इतना बोल दो. ठीक है, क्योंकि तुम लोग अभी ये थोड़ा डिटेल में जाने वाला कॉन्सेप्ट है. इफ यू पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एंट्रेंस, दिस थिंग्स आर इम्पोर्टेंट. ठीक है, तो अभी इसके वजह से क्या होता है? व्हेन यू पुट KOH, नो, इसके अंदर KOH डालेंगे ना. अभी KOH क्या है बोलो? इसका नेचर क्या है? एसिड है कि बेस है? KOH क्या है? बेस. इट इज अ बेस, राइट? तो अभी ये KOH बेस है, और यहाँ पर जो बना है प्रोडक्ट वो एसिड है. तो एसिड के अंदर बेस डालेंगे तो क्या होगा? सॉल्ट. हाँ, सॉल्ट प्रोड्यूस होगा. सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, मतलब वो डिसॉल्व हो जाएगा, है ना. रिएक्शन होगा तो डिसॉल्व भी होगा ना. यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Here what you will say is this product is soluble in alkali. ठीक है, this product is soluble in alkali. Why it is soluble in alkali? Because this is acidic in nature. ठीक है, तो यहाँ पर I'll just repeat the whole thing again. हिंसबर्ग टेस्ट में मेन क्या है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड. इसका फॉर्मूला क्या है? C6H5SO2Cl. So when you treat this with a primary amine, what will happen? There will be a elimination of HCl. HCl निकलने के बाद ये प्रोडक्ट बनेगा. ठीक है, this is the product which will be obtained. I'll just mark it in red. या मैं कर्सर यूज करती हूँ. See, this will be the product which will be obtained. एक मिनट, बहुत गंदा हो गया. See, this will be the product obtained. ठीक है, अभी ये वाला प्रोडक्ट के साथ मैंने KOH डाला, which is a base.
if I put this, what happens? These two will react together and this product will get dissolved. Okay, so this product is soluble in alkali. So this is the case with जो product A बना है ना, this is soluble in alkali. So this is what is observed in case if you use a primary amine. ठीक है, तो अभी तुम लोग सेकेंडरी अमाइन देखेंगे ना, तुम लोगों को अपने आप समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ करके. ठीक है, सो नाउ लेट अस डू विद द सेकेंडरी अमाइन. तो अभी मुझे तुम लोग बताना कि क्या प्रोडक्ट बनेगा. सी हियर, दिस इज योर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड. ठीक है, प्लस यू हैव अ सेकेंडरी अमाइन. ये एक सेकेंडरी अमाइन है. अभी बोलो क्या होगा. What will happen, you say? HCl रिमूव होगा. हाँ, HCl रिमूव होगा. HCl रिमूव होगा तो क्या होगा, क्या बनेगा? The remaining groups will combine up together to give this product as double bond O, N, C2H5, C2H5. This is the product which I have obtained. ये कुछ solid है, सोच लो. ठीक है, दिस इज समथिंग विच सॉलिड आई हैव गॉट. अभी मुझे बताओ, इसके अंदर मैं KOH मैं बेस डालती हूँ, तो यहाँ पर मुझे ये बेस के अंदर ये डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा? थोड़ा सोच के बताना पड़ेगा. No, ma'am. नहीं होगा. It will get dissolved? No. Why it will not get dissolved? Because in the reactant It is not acid. क्योंकि ये एसिडिक नहीं है. क्यों एसिडिक नहीं है? H present H नहीं है ना. वेरी गुड, H नहीं है यहाँ पर एक H था. ये H के वजह से ये एसिडिक था, लेकिन यहाँ पर तो H है ही नहीं, तो ये वो H नहीं है करके ये एसिडिक नहीं है, ये न्यूट्रल है. ठीक है, तो ये एसिड होता तो ही बेस के साथ रिएक्ट करके डिसॉल्व होता था ना, लेकिन ये न्यूट्रल है करके क्या हो रहा है? इट इज नॉट रिएक्टिंग विद दिस बेस, so it is becoming what? Insoluble. So what comment we will make here? The product obtained is insoluble in base या alkali. ठीक है, ये insoluble है. Have you understood now? Yes, ma'am. अमाइन का क्या हाल था? जो प्रोडक्ट बना वो soluble in alkali था. सेकेंडरी अमाइन में जो प्रोडक्ट बना वो insoluble in alkali है. अभी मुझे बताओ, टर्शियरी अमाइन के साथ क्या होगा? The same reagent I am taking, S double bond O Cl. Now I have a tertiary amine with me, R3N. Now tell me what will happen. क्या होगा यहाँ पर? Maybe HCl will not be formed. हाँ? बोलो HCl will not be formed. HCl नहीं बनेगा तो मतलब क्या? In other words, can you tell me something? In other words, anything else? Will there be a reaction taking place? No, ma'am. No, ma'am. Huh? So what I'll say? No reaction. बराबर ना? इन दोनों के बीच में रिएक्शन ही नहीं होगा, कोई प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा यहाँ पर. समझा क्या? Have you understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इनके साथ रिएक्शन ही नहीं होगा. ओके, सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन के साथ होकर प्रोडक्ट बनाता है, और वो जो प्रोडक्ट बना है वो प्राइमरी है तो डिसॉल्व होगा अल्कली में, सेकेंडरी है तो डिसॉल्व नहीं होगा, टर्शियरी है तो यहाँ पर रिएक्शन ही नहीं होता है. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंपाउंड्स. इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes. Okay, so this is known as what? Hinsberg's test. तो Hinsberg's test पे main reagent कौन सा है? Which is the main reagent? Benzene sulfonide chloride. Benzene sulfonide chloride. Okay, if it is a primary amine, the product will be, if it is a primary amine, product will be
Soluble in Soluble alkali. in alkali as it contains acidic proton. Acidic. ठीक है, proton मतलब hydrogen. And if it is a secondary amine, the compound Insoluble. is insoluble in alkali. Insoluble. Of tertiary amine, no reaction will take place between the two. That's it. This is known as what? Hinsberg's reaction. समझा ना सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Difficulties in this, anyone? Yes, ma'am. No, ma'am. कुछ डाउट है तो पूछो. तुम लोगों को है ना ये टेक्स्ट बुक में सिंप्लीफाइड फॉर्म पे दिया है, बट व्हेन यू टेक आउट लास्ट ईयर का जो पुराना टेक्स्ट बुक्स है ना वो या एनसीईआरटी देखेंगे तो इसमें एक और स्टेप आगे आता है, वो तुम लोगों को दिया नहीं है विद एसिड व्हाट हैपेंस करके. सो आई एम नॉट टीचिंग दैट पार्ट. ठीक है, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू ऑल, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एंट्रेंस, यू हैव टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल ऑल्सो. ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा भी तुमको पढ़ना पड़ेगा. ओके, नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट रिएक्शन. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत गंदा लिखा है मैंने, बट एवरीथिंग इज देयर इन द टेक्स्ट बुक. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो. Yes, ma'am. Okay. Now the next reaction. Now I want everyone to pay attention. Very important it is. Easy है. Entrance वालों अच्छे से ध्यान देना, मैं सब बेसिक सब सिखाएगी इसके अंदर. ठीक है, सिर्फ बोलने का है तो 1 मिनट का रिएक्शन है, बट उसके अंदर ये ऐसे से क्यों होता है, those things also I am going to say, so please pay attention. So here the reaction is electrophilic aromatic substitution in aromatic amines. ठीक है, this is the title, electrophilic aromatic substitution. See, substitution reaction में ना दो type of reaction है, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है. ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मींस व्हाट? एक न्यूक्लियोफाइल को निकालकर उसके जगह पर दूसरा न्यूक्लियोफाइल लेकर आना, तो उसको हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या है? एक स्पीशीज को निकालकर उस जगह पर हम लोग को एक इलेक्ट्रोफाइल लेकर आने वाले हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं. ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करके. तो मैंने ये न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, वो सब मैंने पहले ही बताया था. तो अभी के लिए ये याद रखो कि इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है करके. ठीक है, तो अभी है ना हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर देखने वाले हैं? एरोमेटिक अमाइंस पे. सो द फर्स्ट रिएक्शन इज ब्रोमिनेशन. What do you mean by bromination? What do you mean by bromination? Addition of bromine. Addition, actually addition reaction नहीं है, ये substitution है. तो we are going to substitute H by Br. ठीक है, acylation में क्या करते हैं? We substitute H by Hydrogen. हाँ, वैसे bromination में क्या करेंगे? We are going to substitute H by Br ग्रुप. ऐड नहीं करने वाले, सब्स्टिट्यूट करने वाले, इसके जगह पर दूसरा ग्रुप लेकर आने वाले. दिस वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी एडिशन बोलते हैं ना वो डबल बॉन्ड्स के बीच में होता है. ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू यूज दिस टर्म्स. ठीक है, तो अभी हम लोग पहले ना ब्रोमिनेशन रिएक्शन देखने वाले हैं ऑफ एनालीन. ठीक है, तो ये एनालीन है विद NH2 ग्रुप, N के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. I'm going to with bromine water. It is to be treated with bromine water at room temperature. Now what will be the product obtained? देखो अभी क्या प्रोडक्ट बनेगा. Here the product obtained is 2,4,6 trinitro bromoaniline. ये एनालीन है, इसको नंबर 1 पोजीशन देंगे, ये नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5 और ये 6. सो नंबर 2 में एक ब्रोमीन, नंबर 4 में एक ब्रोमीन, नंबर 6 में एक ब्रोमीन. तो इसका नाम क्या हो गया? 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनालीन. ठीक है, दिस इज द प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन्ड. प्लस बाहर क्या निकल रहा है? HBr. देखो अच्छे से, ये बेंजीन रिंग है ना,
तो बेंजीन रिंग में सारे जगह पर H है, बराबर. एवरीवेयर देयर इज वन H, नो, बट वी डू नॉट राइट इट except at this place. Everywhere there is one H. So what we have done, second position का जो H है उसको निकाल कर हमने Br डाल दिया है. तो H रिप्लेस हुआ है कि नहीं. सिमिलरली फोर्थ पोजीशन का जो H है उसको निकाल कर हमने ब्रोमीन डाल दिया है, और सिक्स्थ पोजीशन का जो H है उसको निकाल कर हमने ब्रोमीन डाल दिया है. समझ में आया क्या ये रिएक्शन? मैम व्हाट अबाउट द Yes, ma'am. 3 व्हाट अबाउट द 3 Br written? हाँ, मैं वही बोल रही हूँ. देखो अभी यहाँ से तीन H निकल रहा है ना, तो 3 H निकल रहा है, तो यहाँ से 3 Br, इधर टोटल 6 Br है ना. 3 2s are 6 ब्रोमीन एटम्स आर देयर. तो इसमें से 3 Br इसके साथ जुड़ेगा और ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, 3HBr बन जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर क्या Yes, ma'am. निकलेगा, 3HBr निकलेगा, और बाकी का 3HBr कहाँ पर है, यहाँ पर. तो टोटल 6HBr आया कि नहीं, समझा अभी? Yes, ma'am. Yes. हाँ, व्हाट अबाउट अदर्स, एवरीवन Yeah. फॉलोड? तो यहाँ पर Yes, सिंपल ma'am. क्या किया हमने, Yes, ma'am. 2 4 6 ये पोजीशंस का H निकाला और उस जगह पर ब्रोमीन डाल दिया हमने. ठीक है, अभी ये जो ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन इज अ इलेक्ट्रोफाइल. व्हाट इज दिस? इट इज अ इलेक्ट्रोफाइल. क्योंकि ना ये ब्रोमीन जब भी टूटता है ना, ये ब्रोमीन Br है ना, ऐसे है ना ब्रोमीन, ये जब भी ब्रेक होता है, इट ब्रेक्स लाइक Br प्लस. ये कैसे ब्रेक होगा, Br प्लस और Br माइनस के फॉर्म पे ऐसे ब्रेक होगा. ठीक है, ये Br प्लस जाके बेंजीन रिंग को अटैच करता है. सो Br प्लस ब्रोमीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, सो एनी स्पीशीज विद अ पॉजिटिव चार्ज वी कॉल इट एज व्हाट, वी कॉल इट एज अ इलेक्ट्रोफाइल. समझा? तो अभी इलेक्ट्रोफाइल आके इधर सब्स्टिट्यूट कर रहा है ना, इसके लिए ये रिएक्शन का नाम क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. समझ में आया क्या? Yes, ma'am. हाँ? Yes, ma'am. पर है ना, ये नॉर्मली तुम्हारा 12th का एग्जाम है, तो क्या क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट विल हैपन व्हेन यू ट्रीट दिस एनालीन विद ब्रोमीन वाटर करके पूछेंगे. लेकिन जब भी तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम्स होती है ना, वहां पर क्या पूछेंगे, यहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बना, नेम द स्पीशीज, मतलब ऑप्शन दिया रहेगा. तो यहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बना है, दैट यू शुड नो. व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्वड हियर? What is the electrophile? यहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है? ब्रोमीन. Bromine. हाँ, Br प्लस. अभी मुझे इसका नाम बोलो. Br प्लस को क्या बोलेगी, ब्रोमीन तो नहीं बोलेंगे. ब्रोमीन. Chromium. मैंने कुछ क्लू दिया है तुम लोगों को, पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या बोलते हैं, Brominium. Bromium. Bromine. आयन. ठीक है, ब्रोमोनियम आयन. ठीक है, सो ब्रोमोनियम आयन, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल. इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes. समझा गया? सो व्हेन यू ट्रीट एनालीन, दिस इज योर एनालीन. When you treat aniline with bromine water, it gives you what? 2,4,6 trinitrobromoaniline. Okay. Now one concept needs to be understood. Now what is that concept? See here. तुम लोगों को ऑर्थो मेटा पैरा क्या है मालूम है? Yes. ऑर्थो मेटा पैरा. अब मुझे बोलो इसमें ऑर्थो मेटा पैरा कौन सा है? Tell me which is ortho meta para. बोल सकते हैं क्या? मैम शायद से वो ऊपर नीचे वाला पैरा होगा. मैं उल्टा देखेगी तो see here, when you are talking about ortho meta and para, no, तो वहां पर सब्स्टिट्यूशन होना जरूरी है. एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए ना. Yes. तो सपोज मैंने इसको रेफरेंस पकड़ा, ठीक है, दिस कार्बन एटम इज माय रेफरेंस, तो इसके रेस्पेक्ट में मैं ऑर्थो मेटा पैरा बोल सकेगी. सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो मैं बोल नहीं सकेगी.
ठीक है, सो आई नीड अ सब्स्टिट्यूएंट. सो इसके बाजू में the one which is adjacent to this reference point, that is called as ortho. तो इसको हम क्या बोलेंगे? This is called as ortho, क्योंकि ये दोनों कार्बन एटम रेफरेंस का बाजू में है ना. अभी जो रेफरेंस का ऑल्टरनेट पे है, एक छोड़ के एक, ये ऑल्टरनेट हुआ ना, रेफरेंस से कंपेयर करो, एक छोड़ के उसके बाद है ना ये वाला कार्बन, इसको हम लोग मेटा बोलते हैं. और जो एग्जैक्टली ऐसे ऑपोजिट पे है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज अ पैरा पोजिशन. दिस इज कॉल्ड एज अ पैरा पोजिशन. ठीक है, सो दैट मीन्स व्हाट? जो एडजेसेंट है, जो बाजू में है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको नहीं मालूम है ध्यान से सुन लो. जो बाजू में है उसको हम लोग ऑर्थो बोलते हैं. जो ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट मतलब क्या? एक छोड़ के एक है, उसको हम लोग मेटा बोलते हैं. और जो ऑपोजिट पे है रेफरेंस पॉइंट के, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज अ पैरा पोजिशन. ठीक है, तो कितना ऑर्थो पोजिशन है अपने पास? 2 ऑर्थो पोजिशन है. 2. कितना मेटा है? 2. पैरा कितना होता है? 1. 1. ठीक है, अभी मुझे ना तुमको समझा कि नहीं? अब मुझे बताना. अभी मुझे बोलो, इसमें कौन ऑर्थो है, कौन मेटा है, कौन पैरा है? बोलो. A and D ortho. A and E A and D ortho. 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 Then B and D meta. B and D meta. C क्या है? C Para. C para. अभी मुझे बोलो. C and B. B and C ortho. D and A meta. B and D and meta. B and D कि A and D? A and D. A and D. A and D. क्या है? A is para. Para. नो, बच्चे लोग का इम्प्रेशन ऐसा होता है कि यही हमेशा ऑर्थो, यही हमेशा मेटा और ये हमेशा पैरा. ठीक है, तो बेंजीन को ऐसे भी देखते हैं ना, तो ऐसे ही बोलते हैं, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ऐसे बोलते हैं. दिस इज रॉन्ग. ठीक है, रेफरेंस पॉइंट किधर है वो देखने का, उसके हिसाब से बताना चाहिए. ठीक है, सो फॉर दैट पर्पज ओनली आई मेड यू ऑल टू डू दिस. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. अभी यहाँ पर समझने का क्या है? देखो, यहाँ पर है ना अपना बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है? बेंजीन, मेरे बहुत गंदा बना है बेंजीन. बेंजीन का सब बॉन्ड है ना ऐसे सेम होना चाहिए. सी, अभी बेंजीन के ऊपर ना कौन सा ग्रुप है? NH2 ग्रुप है. NH2 का N के ऊपर क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, जो जिसके भी पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, वो लोग इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं कि नहीं? है ना? Yes. इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं. सो दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप. अब ये जो इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप है ना, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलेंगे. ये डोनेट करेगा ना, लेगा नहीं. ये तो अमीर है. ठीक है, ये देने वाला है. तो जब भी ना बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है ना, ये क्या करता है? कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा ना, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इसको अटैक करने के लिए आ रहा है, तो ये उनको डायरेक्ट करेगा. दिस ग्रुप विल डायरेक्ट दिस, मतलब ये बोलेगा कि इसको कहाँ पर जाना है करके. मतलब ये ऑर्थो में जाएगा कि मेटा में जाएगा कि पैरा में जाएगा, वो कौन डायरेक्ट करता है? इट इज डायरेक्टेड बाय द ग्रुप विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द बेंजीन रिंग. ठीक है, आई विल रिपीट इट. द ग्रुप विच इज प्रेजेंट आउटसाइड दिस बेंजीन रिंग, नो, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. याद रख लो, बाय हार्ट ही कर लो. NH2 इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. ठीक है, और ये ग्रुप डिसाइड करेगा
कि जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पर डालेंगे, हम इधर डालेंगे या इधर डालेंगे कि इधर डालेंगे किधर डालेंगे, वो ये वाला ग्रुप डिसाइड करेगा। ठीक है, हम लोग कहीं पर भी नहीं डाल सकते। ठीक है, इट इज डिसाइडेड बाय दिस ग्रुप। अभी what you should remember is electron donating group will direct the electrophile at ortho और para position। इसका मतलब क्या है, जब भी ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा, सॉरी डोनेटिंग ग्रुप रहेगा ना, ये हमेशा क्या करेगा, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल को आइदर ऑर्थो पोजीशन पे भेजेगा या पैरा पोजीशन पे भेजेगा, लेकिन कभी वो मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को रखेगा नहीं। समझ में आया क्या? यस और Yes. ठीक है, so what electron donating groups will do, it will always direct the nucleophile at ortho and para position। तो हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। सपोज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा ना, NO2 वगैरह सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, NO2 CHO COOH, ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये लोग सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को है ना मेटा पोजीशन पे भेजते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को मेटा डायरेक्टिंग करके बोलते हैं। समझा क्या? इट इज कॉल्ड एज मेटा डायरेक्टिंग, मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो मेटा पोजीशन पे जाएगा। ये समझा क्या तुम लोगों को? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। बाय हार्ट इट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर Ortho para ऑर्थो direct. पैरा डायरेक्टिंग। इलेक्ट्रॉन Ortho विड्रॉइंग ग्रुप्स आर Ortho para direct. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग Meta direct. Meta directing. ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पर देखो, ऊपर वाला जो एग्जाम्पल हमने किया था ना, वो वाला एग्जाम्पल देखना। देखो यहाँ पर ये कौन सा ग्रुप है, व्हाट इज दिस ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने अपना इलेक्ट्रोफाइल को किधर भेजा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे भेजा है कि नहीं? यस और नो? देखो Yes. ऑर्थो में आया है Yes, और पैरा ma'am. पे आया है। समझा? तो इसने ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है करके ये ऑर्थो और पैरा पे आया। So sometimes only ortho will be formed, sometimes पैरा भी सिर्फ बनता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, सारे ऑर्थो और पैरा तीनों जगह पर चले जाते हैं। समझ में आया? तो ये केस पे ऑर्थो और पैरा दोनों जगह पर आया है। समझ में आया क्या? Yes, ma'am. Have you understood Yes. everyone? Please try to Yes, Yes. याद क्या रखने का है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, NH2 is the electron donating group. This is what you will have to remember it. ठीक है? Yes. Okay. Now the next one, nitration reaction. ये सब बहुत easy है, बस ये concept तुमको मालूम रहेगा ना, मतलब you will enjoy and do it. But समझा नहीं तो पूरा confuse हो जाओगे फिर। ठीक है? Now let me check how you people answer. ये मैं बताएगी नहीं, तुम लोग मुझे आंसर करोगे। ठीक है? सो नेक्स्ट रिएक्शन इज नाइट्रेशन। ठीक है, ब्रोमिनेशन में मैंने क्या बोला था, व्हाट इज ब्रोमिनेशन बोला था मैंने? Substitution. H is Replacement of H by Bromine. Br. बोला था ना, H is replaced by bromine। क्लोरीनेशन मतलब क्लोरीन। अभी मैं नाइट्रेशन बोल रही हूँ, तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, H को Hydrogen is replaced by nitrogen. NO2 ग्रुप। कौन सा ग्रुप? NO2। NO2. NO2 इज नाइट्रो ग्रुप, इसको नाइट्रो बोलते हैं। और मैं ये भी बता देती हूँ, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है, बाय हार्ट करना पड़ेगा, सर्टेन थिंग्स यू विल हैव टू बाय हार्ट इट। नाइट्रो इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये कौन सा डायरेक्टिंग रहेगा? Meta. इट विल बी मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, दिस शुड बी अ मेटा डायरेक्टिंग। यहाँ तक समझा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay.
अभी रिएक्शन क्या है देखते हैं। रिएक्शन देखो, दिस इज NH2, दिस इज NH2, ओके। अभी मुझे ना नाइट्रेशन करना है ना, तो नाइट्रेशन करने के लिए ना हम लोग नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज करते हैं। वी यूज व्हाट? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। अब ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जब भी हमको नाइट्रेशन करने का रहेगा ना, तो हम लोग इसी का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, HNO3 और H2SO4 का। ये दोनों रिएक्ट करके NO2 प्लस बनाता है, एंड दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। इन दिस केस हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे हैं ना, तो इसका इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? नाइट्रोनियम आयन, ठीक है। दिस विल गो एंड अटैक हियर, ठीक है। अभी मुझे बताओ NH2 क्या है? व्हाट इज दिस NH2? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ये कौन सा डायरेक्ट करेगा? ऑर्थो एंड पैरा। ऑर्थो पैरा। कौन सा प्रोडक्ट मिलना ऑर्थो चाहिए? एंड प्रोडक्ट मेटा एंड पैरा प्रोडक्ट मिलना चाहिए। मतलब जो आने वाला NO2 है उसको ये ऑर्थो में भेजेगा, करेक्ट। कोई एक ऑर्थो ले लो, हाँ, एक ऑर्थो में मैंने डाल दिया, ये एक बनेगा, दूसरा क्या है? पैरा, ये एक बनेगा, बराबर। यस और नो? यहाँ पर NO2 Yes, नहीं लग रहा है, हम सिर्फ NH2 को पकड़ रहे हैं, ठीक। ये समझा? Yes. ऑर्थो प्रोडक्ट बना, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्थो नाइट्रो एनालीन, एंड दिस इज कॉल्ड एज पैरा नाइट्रो एनालीन, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या होता है पता है? यहाँ पर मेटा नहीं बनना चाहिए ना, है कि नहीं? मेटा शुड नॉट बी फॉर्म, पर यहाँ पर मेटा बनता है। Here the meta is formed. NH2 NO2 meta nitroaniline is also formed. Okay, कहाँ चला गया? Here meta nitroaniline is also formed. Now tell me which should be in major amount? ऑर्थो, मेटा, पैरा, इन तीनों में से ज्यादा कौन बनना चाहिए? बोलो। हाँ, इन तीनों में से कौन ज्यादा बनना चाहिए? ऑर्थो नाइट्रो। नहीं, ऑर्थो में क्या होता है ना, ये दो ग्रुप बाजू बाजू में है ना, तो इनके बीच में ना स्टेरिक हिंड्रेंस आती है, क्राउडिंग आती है, ठीक है। तो क्राउडिंग की वजह से ना ये इतना स्टेबल नहीं होता है, तो ये ज्यादा मेजर पे नहीं बनता है। अभी मुझे बोलो कौन? पैरा। पैरा रहेगा, क्योंकि ये दोनों ग्रुप दूर है ना, तो क्राउडिंग बाजू बाजू में नहीं है, तो स्टेबल रहेगा। सो पैरा प्रोडक्ट नो डाउट इट इज इन मेजर अमाउंट, 51% बनता ही है, ठीक है। अभी आता है नेक्स्ट ऑर्थो और मेटा के बीच पे। अभी हमको क्या लगता है कि ये मेटा बनाना ही नहीं चाहिए था ना, यस और नो? Yes. है ना, ये मेटा बनाना ही नहीं चाहिए Yes. था। क्यों? क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ही बनाना चाहिए था। बट व्हाई दिस मेटा प्रोडक्ट इज ऑब्टेन वी डोंट नो, सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड इट आउट। और ये भी नहीं, ठीक है, कभी कभी क्या होता है थोड़ा सा तो बन ही जाता है, तो वैसा भी नहीं है, ये थोड़ा भी नहीं बन रहा है, ज्यादा बन रहा है। कितना बन रहा है देखो, इट इज बीइंग फॉर्म्ड इन 47% अमाउंट, मतलब ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल परसेंटेज में बन गया है ना, है कि नहीं? और ये ऑर्थो जो है वो बहुत कम बना है, दिस इज बीइंग फॉर्म्ड वेरी लेस, सो दैट वी कैन अग्री, ठीक है, ये बाजू बाजू में है, क्राउडिंग के वजह से कम हो गया। बट अभी अपने मन पे ये डाउट आता है कि ये मेटा बना कैसे? मेटा तो बनना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। सबको ये डाउट आ रहा है कि नहीं? यस और नो? आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So now we are going to find out the reason why this is formed in major amount. See, actually क्या होता है ना, ये थोड़ा प्रैक्टिकली देखने की चीज होती है। हम लोग ने थियोरेटिकली बताया ना, थोड़ा इसको प्रैक्टिकली देखो। हमने क्या किया? We took aniline,
ठीक है, एनालिन लिया, उसके अंदर ये एसिड्स डाला ना, ये एसिड है ना, नाइट्रिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। सो एनालिन सब एसिडिक मीडियम पे प्रेजेंट है ना। एनालिन इज प्रेजेंट इन विच मीडियम, सबको एक ही टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया ना हमने, तो ये पूरा एनालिन एसिडिक मीडियम पे है। सो एनालिन यू ऑल नो इट इज अ बेस, नो, यस और नो, एनालिन एक बेस है, और वो किसके साथ है, अंदर एसिड के साथ है। तो ये एसिड और बेस रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा ना। Yes, ma'am. तो ये दोनों रिएक्ट करेगा, तो व्हाट विल हैपन, दिस लोन पेयर विल बी डोनेटेड टू दिस H plus and it will form what, it will form NH3 plus or no। Yes, ma'am. तो एसिडिक मीडियम पे हमको क्या लग रहा था कि हमने जो टेस्ट ट्यूब में एनालिन लिया है वो NH2 के फॉर्म पे है, ऐसा हमको लगा, और उसके हिसाब से हमने बोला कि ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनना चाहिए। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, उसका एनवायरनमेंट एसिडिक है करके ये NH2 के फॉर्म पे नहीं, NH3 प्लस के फॉर्म पे अंदर प्रेजेंट है। समझा क्या, 50-50% पे, आधा ये फॉर्म पे है तो आधा ये फॉर्म पे है। अभी देखो यहाँ पर पहले लोन पेयर था करके हमने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोला था, बराबर। अभी यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या, No, ma'am. No, बच ma'am. गया ना, इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके ऊपर नहीं है, तो ये कौन सा ग्रुप बन गया, इलेक्ट्रॉन Electron विड्रॉइंग ग्रुप बन गया। ये withdrawing. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो कौन सा डायरेक्टिंग बनेगा, Meta. मेटा डायरेक्ट। मेटा डायरेक्टिंग। Meta direct. समझा अभी ये मेटा प्रोडक्ट क्यों मेजर बन रहा है करके, Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग, that in that test tube or in the vessel whichever we are taking, उसमें सिर्फ एनालिन नहीं है, उसमें आधा आधा करके ये भी प्रेजेंट है और ये एनालिनियम आयन भी प्रेजेंट है। तो इसी के वजह से हमको ये पैरा प्रोडक्ट भी मिल रहा है और मेटा प्रोडक्ट भी मिल रहा है। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। नहीं समझा तो पूछो। Can you please repeat this? Can you please repeat this? Aditya, you said something. See, I'll repeat the whole thing again. देखो नाइट्रेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, H is replaced by NO2 group, ठीक है। अभी हमने लिया क्या है रिएजेंट, we have taken a aniline। अभी एनालिन है और नाइट्रेशन के लिए हमको नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज करते हैं, दैट इज HNO3 एंड H2SO4। ये दोनों रिएक्ट करके NO2 प्लस बनाता है, एंड दिस NO2 प्लस विल गो एंड अटैक द बेंजीन रिंग, ठीक है। नाउ सिंस दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, the product obtained should be what, it should be ortho and para product, but to our surprise we have also got meta compound, जो बनना ही नहीं था वो बना है। तो ये क्यों बना, क्योंकि ये जो एनालिन है वो एसिडिक मीडियम पे है। सो whenever aniline is present in acidic medium, it is present in this form, NH3 plus के फॉर्म पे रहता है। तो NH3 प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, और वो क्या करता है, आने वाला NO2 प्लस को मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट कर देता है। तो इसी के वजह से we get meta product also। Followed now? Yes, ma'am. Yes. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। Done. ये तुम्हारे बुक में क्वेश्चन नहीं है, मैं ऐसे ही तुम लोगों को समझा कि नहीं उसके लिए पूछ रही हूँ। सपोज मैंने ये वाला कंपाउंड लिया, ठीक है, और मैंने कॉन्क HNO3 और H2SO4 लिया। अब मुझे बताओ कौन क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ इट। नाइट्रेशन ही हो रहा है, मैंने नाइट्रेटिंग मिक्सचर ही लिया ना, तो इन दोनों रिएक्ट करके NO2 प्लस बनाएगा। अभी मुझे बोलो ऑर्थो मेटा पैरा, इसमें से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा मेजरली यहाँ पर, मेटा। विच ग्रुप इज दिस,
हाँ Withdrawing group. withdrawing. विड्रॉइंग है तो कौन सा डायरेक्टिंग होगा? Meta. Meta direct. कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? Meta product. मेटा प्रोडक्ट. So meta dinitrobenzene should be the major product over here. ये इधर इसका major product होगा. समझा? So this is how we predict the product. तुम लोगों को लगेगा ना कभी ऊपर डाल रहे कभी नीचे डाल रहे क्यों डाल रहे करके. So ये ग्रुप से हम लोग डिसाइड करते हैं कि ऑर्थो मेटा पैरा क्या बनेगा करके. Followed everyone? Yes, ma'am. Yes. What is nitrating mixture? What is the nitrating mixture? H is replaced by NO2. नहीं, nitrating Nitro group. mixture. नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या है? Concentrated HNO3 plus NO2 plus Concentrated HNO3 and concentrated sulfur. H2SO4. What is the electrophile generated? NO2 plus. NO2. NO2. Nitronium ion. ठीक है? NO2 plus. Electron donating groups are what directing? Ortho para direct. ortho para. Ortho. Electron withdrawing groups are Meta direct. Meta Direct. major product in that case. ठीक है? Followed everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये थोड़ा खतरनाक रिएक्शन है. ठीक है, अच्छा रिएक्शन है, थोड़ा समझने का कोशिश करो. अभी तुम लोग मुझे बताएंगे. हाँ, थिंक एंड से. Can anyone tell me what will be the product obtained? I can give you a clue saying that it is acetylation reaction. Clue दे दिया मैंने. अभी मुझे बोलो क्या प्रोडक्ट बनेगा? NCH3CO. NH CH3 C double bond O double C. bond to CH3. Correct? CH3 Yes, C ma'am. bond O है ना? So ये एक्चुअली ऐसा है. CH3 C double bond O O C double bond O CH3. ये 2 बार है ना? ये देखो 2 बार है और एक ऑक्सीजन 1 बार है, उसको हमने बाहर लिखा है. तो क्या होगा? 1H will be replaced by this group. एक H को हमने इससे रिप्लेस कर दिया. अभी बचा क्या है तुम्हारा? ये वाला ग्रुप बचा है ना? This group is remaining. So this group and H will combine. और ये बाहर क्या निकलेगा? बाई प्रोडक्ट CH3 C डबल बॉन्ड O OH बाहर निकलेगा. यहाँ तक समझा? एसिटाइलेशन स्टेप ही है ये. Yes, ma'am. तो इसके ना एसिटिक एनहाइड्राइड है. दिस इज कॉल्ड एज एसिटिक एनहाइड्राइड. ठीक है? इसके बदले में हम लोग एसिड क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं. CH3COCl भी यूज कर सकते हैं. सेम प्रोडक्ट ही मिलेगा हमको, बस हमको CH3CO चाहिए. ठीक है? अभी ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट स्टेप. नाउ इन द सेकेंड स्टेप आई एम गोइंग टू ट्रीट इट विथ concentrated HNO3 and concentrated sulfuric acid. अभी मुझे बोलो ये कौन सा स्टेप होगा? What step it will be? Nitration. Nitration. Reagent देख के पता चल रहा है ना अभी? नाइट्रेशन. तो यहाँ पर अभी क्या आने वाला है? नाइट्रो ग्रुप आने वाला है. तो नाइट्रो ग्रुप कहाँ पर आएगा? दैट इज द क्वेश्चन हियर. तो अभी मुझे बोलो नाइट्रो ग्रुप कहाँ पर आएगा और क्यों? हाइड्रोजन की जगह. हाँ, मैम इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन. कहाँ पर? ऑर्थो मेटा पैरा कहाँ पर आएगा? Meta. मेटा नहीं. ठीक है, मैं ये बोलती हूँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. पैरा एंड मेटा. मैम ऑल नहीं, इन ऑल नहीं आना चाहिए करके ये रिएक्शन की है. Ortho. इट विल कम इन. ठीक है, अभी मैं ऑर्थो में डालेगी ना तो कुछ गड़बड़ लग रहा है. क्या होगा यहाँ पर?
स्टेरिक एंट्रेंस। स्टेरिक एंट्रेंस होगा ना, क्राउडिंग ज्यादा हो गया है तो ये इतना बनेगा लेकिन बहुत कम बनेगा। लेकिन मेजर कौन बनेगा? मेजर पैरा। मेजर जितना दूर रहेगा ना उतना स्टेबल रहेगा, रिपल्शन कम होगी। ठीक है, तो पैरा प्रोडक्ट विल बी मेजर। तो ये प्रोडक्ट क्या है? ये पैरा नाइट्रो एसिटाएनालीड है। ठीक है, दिस इज एसिटाएनालीड। तो यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप आ गया तो पैरा नाइट्रो एसिटाएनालीड। ठीक है, अभी इसको मैं फर्दर क्या करने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू हाइड्रोलाइज इट। इसको एसिड के साथ ट्रीट करने वाला है। सो व्हेन यू ट्रीट इट विद एसिड नो, ये ग्रुप चला जाएगा और यहाँ पर वापस तुमको क्या मिलेगा? NH2 मिल जाएगा, NH2। और यहाँ पर NO2 वैसे ही रहेगा। सो व्हाट आई हैव गॉट हियर? पैरा नाइट्रोएनालीन। आई हैव गॉट दिस प्रोडक्ट। ठीक है, सो नाउ टेल मी व्हाट आई हैव डन एक्चुअली। मैंने किया क्या है यहाँ पर? व्हाट आई हैव डन? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन किया, वेरी गुड। तो नाइट्रेशन किया मतलब मैंने ये एनालीन को, मेरा ऐसे एनालीन था, मैंने ये एनालीन को क्या किया? NH2 NO2 है ना, ये मेरा रिएक्टेंट है, ये बनाया मैंने, बराबर ना? मैंने ये बनाया। तो ये बनाने का है तो मैं डायरेक्टली कर सकती थी ना, आई कुड हैव डन डायरेक्टली द नाइट्रेशन नो। ये बीच में एसिटाइलेशन क्यों आ गया? आर यू ऑल गेटिंग माय क्वेश्चन? I could have done this only directly, no? यहाँ पर 3 स्टेप्स आ गया देखो। पहला स्टेप था मेरा एसिटाइलेशन, सेकेंड स्टेप था मेरा नाइट्रेशन, थर्ड स्टेप था मेरा हाइड्रोलाइसिस। ऐसे 3 स्टेप में मैंने किया, एक ही स्टेप में करने का था ना डायरेक्ट नाइट्रेशन, क्यों नहीं किया मैंने? Because of C double bond. बिकॉज ऑफ स्टार्टिंग में C डबल बॉन्ड हो किधर? NH2 ही तो है। See the thing is, if you do not do this step, no, इसको है ना प्रोटेक्शन स्टेप बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज प्रोटेक्शन। ठीक है, एक्चुअली ना ये स्टेप नहीं करेंगे ना, ये प्रोटेक्शन है, लास्ट में ये डी प्रोटेक्शन है, वापस लेकर आ रहे हैं ना उसको, ये डी प्रोटेक्शन है। तो ये हमने प्रोटेक्शन क्यों किया? ये नहीं करते थे ना, ये किए बिना डायरेक्टली हम लोग ने नाइट्रेशन किया तो सारे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ये NO2 आ जाता था। समझ में आ रहा है? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के वजह से ऑल द 3 पोजीशन, एट ऑल द 3 पोजीशंस यू वुड हैव गॉट नाइट्रो ग्रुप। मुझे ऐसा नहीं करने का था, मुझे सिर्फ पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप को लेकर आने का था। समझ में आ रहा है? आर यू ऑल गेटिंग मी? Yes. If I do the nitration directly, मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोएनालीन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो जितना ऑर्थो है जितना पैरा है सबको ये भर देगा, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ पैरा पोजीशन पे चाहिए। तो मतलब इसका एक्टिविटी को हमको कम करना है, ये ज्यादा एक्टिव है करके ऑर्थो पैरा सबको भर रहा है ना, तो इसका एक्टिविटी को कम करने के लिए पहले हमने ये प्रोटेक्शन स्टेप किया, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया एसिटाएनालीड में। अभी ये कम पावरफुल हो गया है। ठीक है, तो ये कम पावरफुल होने के वजह से अब भी नाइट्रेशन किया तो हमको ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिला, लेकिन ऑर्थो हमको मालूम है ये बनेगा नहीं बिकॉज ऑफ दिस क्राउडिंग। ठीक है, तो इसकी वजह से सिर्फ पैरा प्रोडक्ट मिल गया। तो वंस द पैरा पोजीशन इज ऑक्यूपाइड देन वी रिलीज दिस, फिर उसको निकाल देते हैं, वो स्टेप को हम लोग डी प्रोटेक्शन बोलते हैं। एंड फाइनली वी गेट व्हाट वी नीडेड। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? यस मैम। Yes. ठीक है, तो कोई पूछा डायरेक्टली क्यों नहीं किया तो ये बोलने का कि पहला स्टेप हम लोग प्रोटेक्शन कर रहे हैं ताकि क्या हो जाएगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो ट्राई नाइट्रोएनालीन बन जाएगा। ये नहीं करेंगे तो ये सब है ना बहुत अच्छे से तुम्हारा वो ब्रैकेट में दिया हुआ है, you all can sit silently and read it. Okay, take a screenshot of this. Actually you are supposed to write down when it is taught in the class. ऐसे सिर्फ स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे ना तो कुछ याद नहीं रहने वाला है।
एक बार देख के, एक बार बिना देख के तुरंत लिखेंगे तो समझेगा ये सब। ठीक है? यस मैम। चलो ना टेस्ट टाइम। अभी मुझे ना तुम लोग मुझे गाइड करने का। मेरे पास एनालीन है एज यूजुअल, मुझे पैरा ब्रोमो एनालीन बनाना है। सो व्हाट विल बी द स्टेप्स? टेल मी। पहला स्टेप क्या रहेगा? Acetylation. पहला स्टेप विल बी एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन के लिए व्हाट कैन आई यूज? एसिड क्लोराइड या एसिटिक एनाहाइड्राइड? CH3. एनीथिंग बट विद सी, दिस ग्रुप। ठीक C है? double bond O. Now what will happen? I'll get acetanilide, NHCOCH3. This is acetanilide. अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगी मैं? ब्रोमिनेशन। Bromination. चाहिए मुझे, तो ब्रोमिनेशन, ब्रोमीन इन एसिटिक एसिड, दिस शुड बी यूज्ड. So when I use this, I'll get bromine in the para position. फिर इसको रिलीज करना पड़ेगा. That step is hydrolysis in presence of acid. So what I'll get now? NH2Br. That's all. समझा? Yes or no? Yes. Yes, ma'am. Now the last reaction is sulfonation. ठीक है? Sulfonation. Now what is sulfonation? Introducing SO3H group. ठीक है? So we are going to replace H by SO3H group. नाइट्रेशन में NO2 से रिप्लेस किया ना, सल्फोनेशन में SO3H से रिप्लेस करने का. So see here, what we are going to do is, यहाँ पर रिएजेंट तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड होगा. So NH2 in presence of sulfuric acid will give you this. पहले ये बनेगा NH3+. ये एसिड है ना, तो इसका H पहले इसको अटैक करेगा, NH3+. यहाँ पर अभी बचा क्या है? HSO4-. तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, H+ HSO4-. इन दोनों को ऐड करो. Yes, ma'am. तो पहले मैंने ये H को इधर अटैक कर लिया क्योंकि लोन पेयर के साथ, फिर बचा हुआ जो माइनस है वो इधर अट्रैक्ट हो गया. दिस इज नोन एज एनालिनियम हाइड्रोजन सल्फेट. ठीक है? नाउ दिस व्हेन यू हीट इट at 453 to 473 Kelvin, this group will move to the para position. So what you will get? You will get NH2SO3H, and this compound is known as sulfonilic acid. ठीक है? बस इतना ही है. ये एक रिएक्शन तुमको पूरा याद रखना पड़ेगा. समझा क्या? एनालिन सल्फोनेशन के लिए हम लोग क्या रिएजेंट यूज कर रहे हैं? सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे हैं. Yes, ma'am. When you treat it with sulfuric acid, anilinium hydrogen sulfate is obtained. When you heat it, then there is a rearrangement to give you what? Sulfonilic acid. SO3H group आ गया. देखो अभी क्या है ना, ये बेस है ना, ये बेस है, ये एसिडिक है. एक ही कंपाउंड में जब भी एसिड और बेस साथ पे रहेगा ना, तो इट विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ डाइपोलर आयन, या इसको हम ज्विटर आयन भी बोलते हैं. तुम लोग ने पढ़ा है क्या बायोलॉजी में? इसको ज्विटर आयन भी बोलते हैं. प्रोटीन्स एंड ऑल दे एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म, अमीनो एसिड्स. ठीक है? तो ये ज्विटर आयन का मतलब क्या है? ये एसिड है ना, एसिड प्रोटॉन को डोनेट करेगा, so it will donate the proton and that proton will be accepted by it, so it will exist like this. ये कैसे एग्जिस्ट होगा? NH3+ SO3- के फॉर्म पे, और इसी को हम ज्विटर आयन करके बोलते हैं, या डाइपोलर. डाइपोल है ना, दो साइन है, चार्जेस है, इसके लिए इसको डाइपोलर करके बोलते हैं. समझ में आया क्या? Yes. Yes, ma'am. ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका. अभी एक ही रिएक्शन बचा है. दैट्स ऑल, वी फिनिश्ड.
ये एक खतरनाक रिएक्शन है, मतलब ये एक ही एग्जांपल है, बाय हार्ट करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। हॉफमैन्स एलिमिनेशन, हॉफमैन के नाम पे खुद दूसरा कुछ भी पढ़ा था ना हमने, व्हाट इज दैट? Hoffman degradation. डिग्रेडेशन था, ये एलिमिनेशन है, ठीक है। सो हॉफमैन्स एलिमिनेशन में होता क्या है देखो, आई वांट एवरीवन टू लर्न दिस स्टेटमेंट नाउ इटसेल्फ। व्हेन टेट्रा अल्काइल ammonium halide, when tetra alkyl ammonium halide is heated with moist silver oxide, when it is heated with moist silver oxide, it gives quaternary ammonium hydroxide, ठीक है। This is the reaction. What is the reaction? When tetra alkyl ammonium halide is heated with moist silver oxide, it gives what? Quaternary ammonium hydroxide, ठीक है। Now when you heat it further, ये जो product बना है ना, when you heat it further, it will undergo beta elimination. It will undergo beta elimination and an alkene will be formed. What will be formed? Alkene will be formed, and this alkene will be the least substituted one, ठीक है। So this whole thing is known as what? Hofmann's elimination. So what are we doing? When tetra alkyl ammonium halide is heated with moist silver oxide, it gives what? Quaternary ammonium hydroxide. This on heating further will undergo beta elimination and least substituted alkene will be formed as the major product, ठीक है। अभी इसका रिएक्शन देखो, the reaction I can write it like this, only one example is there, you will have to by heart that CH3 CH2। मुझे एक बात बताओ, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? टेट्रा अल्काइल अमोनियम हलाइड, जनरल फॉर्मूला बताओ। टेट्रा अल्काइल RNX. tetra alkyl halide means, tetra alkyl means R4N. R4. NX. Ammonium means, ammonium N means plus. N के ऊपर Plus sign. Positive charge. halide means X minus, so this will be the general formula, बराबर। तो मैं इसका है ना एक एग्जांपल ले रही हूँ। तो R के जगह पर है ना, आई एम गोइंग टू टेक CH3 CH2 CH2 N प्लस, ठीक है। एक R ग्रुप मेरा प्रोपाइल है और दूसरा R ग्रुप मेरा CH2 CH3 3 टाइम्स है, बराबर है। 4 R ग्रुप है, एक R ग्रुप ये है और बाकी का 3 R ग्रुप क्या है? इथाइल है। और फिर मैंने यहाँ पर हैलोजन कौन सा यूज किया है? आयोडीन। इज दिस एग्जाम्पल क्लियर? द सेम थिंग आई हैव रिटन, लेकिन आर ग्रुप मैंने अलग अलग लिया है बस। दिस आई कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, CH2 CH2 CH3 और यहाँ पर CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 प्लस चार्ज और I माइनस, बस सेम है। So now this is treated with what? Moist silver oxide, ठीक है। सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? Ag2O. So moist means there is some water present. So when this water reacts with this Ag2O, no, it forms AgOH. क्या बनता है वो? AgOH बन जाता है। So when these two reacts together, ये I को निकाल कर बस वहां पर OH माइनस डालना है। So what I'll write here? CH3 CH2 CH2 N plus CH2 CH3 3 times, I माइनस के बदले में क्या डालने का? OH माइनस डालने का। When it is treated with AgOH, no, OH माइनस बनेगा, ठीक है। In the next step, when you heat it, what will be the product obtained? CH2 double bond CH2. This will be the product obtained.
देखो अभी यहाँ पर है ना 2 टाइप ऑफ R ग्रुप है, ये एक R ग्रुप है 2 कार्बन वाला, और 3 कार्बन वाला एक R ग्रुप है। तो सबसे छोटा अल्कीन किससे बनेगा, 2 वाले से कि 3 वाले से? 2 वाले से। 2 वाले से। 2 वाले से। इथाइल से सबसे छोटा अल्कीन बनेगा, तो इसके लिए मैंने इसको अल्कीन बना दिया, ठीक है, क्योंकि अपना रिएक्शन में क्या बोला है हमने, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट बोला है ना, तो सबसे लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड ये वाला रहेगा, और बचा हुआ जो है इट विल बी दिस प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2N, एक CH2 CH3 बाकी है ना, वहां पर 3 था, उसमें से 2 वहीं पर रहेगा CH2 CH3, ठीक है। So the major product will be this alkene. Have you all understood this reaction? Yes. Yes or no? बस इतना याद रखो, देखो यहाँ पर है ना, you have only one reaction is there. You have this tetra alkyl ammonium halide, ठीक है, ये टेट्रा अल्काइल अमोनियम हालाइड है, इसको हमने AgOH के साथ रिएक्ट किया, तो क्या हो गया, ये आयोडीन को मैंने OH से रिप्लेस किया, बाकी सब आई हैव रिटन इट एज इट इज। नाउ व्हेन यू हीट इट फर्दर नो, देन व्हाट हैपेंस, बीटा एलिमिनेशन होता है, और बीटा एलिमिनेशन होकर लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज फॉर्म्ड एज द मेजर प्रोडक्ट, दैट्स ऑल, ठीक है। Have you understood this? Yes. So that completes with your chapter amines. किसी को कोई डाउट है क्या? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। Yes, ma'am. Yeah? Yes, Yes. ma'am. Okay. So in the next class, I'll be starting with a new chapter. ठीक है? नया चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट करेगी, बट आई वांट यू ऑल टू लर्न दिस चैप्टर आल्सो एंड कम, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पढ़ के आएंगे लिख के ले लो। यू विल स्टडी द होल प्रिपरेशन मेथड, पूरा प्रिपरेशन मेथड पढ़ के आएंगे। I'll be giving you all random questions, ठीक है। See Ashish, you asked me for Gabriel Thalamide, no? That I'll do it in the next class. आज time हो गया है ना? Okay. So I'll do it in the next class. But I want you all to study and come everything. Nomenclature or preparations of amines you will study and come. ठीक है? Okay, I'll stop now. We'll meet in the next class. Bye. Thank you, ma'am. Bye, ma'am.